NC leader saying मैं उनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ for the sacrifice that he has made. Kavinder Gupta ji on the phone line with us. Mr. Kavinder Gupta, you heard the reaction from the National Conference justifying decorating the grave, comparing Yaqub Memon to martyr, saying they fought for a cause and I respect him. What do you say? देखिए, नंबर एक तो आतंकी का समर्थन करने वाला भी आतंकी है। इस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार से आतंकियों पर की जाती है। जानबूझकर माहौल खराब करने की जो कोशिश और ऐसे लोगों को ये शहीदों का दर्जा देना चाहते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो देश के दुश्मन है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उनको समर्थन करते हैं, ये क्या बर्दाश्त करने योग्य है? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर भी ये आतंकी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है, 257 lives that were lost in the bomb blast, he is a convicted terrorist and he is saying कि उनका एग्जीक्यूशन गलत है, ये लोगों ने अब मान लिया है, इसीलिए उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि उनका जो भी मकसद हो, मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना जान दिया है। देखिए, बिल्कुल ये गलत बयानबाजी है, ये काबिल बर्दाश्त मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वहां पर जो भी लोग ये जो मारे गए थे, उसमें हिंदू, मुसलमान या दूसरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इसने किसके इशारे पर ये काम किया था? याकूब मेमन जैसे लोग जिनको कोर्ट सजा दे रही है, ये कोर्ट का भी अपमान है। मुझे लगता है कि सख्ती से निपटे जाना जरूरी है। जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, उन्होंने कंपेयर किया है जम्मू एंड कश्मीर से। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे भी मिलिटेंसी कुछ लोग लेते हैं, उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उनका एक कॉज है, वो अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं उनका इज्जत करना चाहता हूँ। वो NC से हैं, ही इज फ्रॉम फारूक अब्दुल्ला पार्टी। उनका कॉज है हिंदुस्तान की तबाही करना, या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? ये हिंदुस्तान की तबाही, यहाँ पर खराबी के लिए लगातार मुझे लगता है कि ये काम करते हैं और ये भी ये पाकिस्तान के इशारों पर इस प्रकार के लोगों का समर्थन करते हैं। इन पर भी आतंकी गतिविधियों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जी, All right, Mr. Kavinder, thank you for joining us with your thoughts on that. We have Major General J.D. Bakshi also joining us. But Major General, before I come to you, let's play that out. You have to hear it to believe it. This is the leader of National Conference insulting martyrs and justifying the beautification of Yaqub Memon's grave. Listen in. मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है, उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। So there you heard it. Major General J.D. Bakshi, how do you respond to something like this? Provocation and an unthinkable terror justification. The NC leader saying that हम उसकी इज्जत करते हैं for the kind of sacrifice that he has made. He says it's a sacrifice that he has made. How do you respond? This is outright support to terrorist activities. This is almost, he's performing the role of an OGW, an overground worker. And you see, this so-called centrist party of Kashmir, the National Conference, has been straying. They have been trying to gain some votes, they think, by pandering to some extremist elements in the valley, and by trying to lionize and make heroes out of terrorists who have been sent from abroad, from foreign countries. They're not even indigenous people who have taken up weapons against the state. They are foreigners who have come to fight in India, to wage a war of terror. Yes, waging a war against India, and such people are being celebrated, and you have people who are giving a justification of it. Major General, requesting you to stay on with us. We have Mr. Atul Anjar also with us on the broadcast. I just want to get his view on it as well. The grave of Yaqub Memon has been beautified. NC has now said there's nothing wrong with it. What's your reaction to it? I don't think it is proper. It's not proper. According to the IPC and CRPC and the Constitution, he was given all rights to defend himself, but he was found the main culprit of killing hundreds of people in Bombay blast.
and accordingly he has been punished. And some people, if want to beautify his graveyard, I think it's nothing more than that the vitiating minds, and these people should understand they are living in India and they cannot, you see, disobey the constitution and judiciary of this country. At the same time, I just want to appeal to such type of parties, those who are coming forward for such type heinous crime which has been done by certain people, and they are supporting such type of things, that beautifying of their mazars are very nominal and very good and something within the purview of their understanding. I think this is highly but condemnable. it's not just a beautification, Mr. Atul Anjan. You have parties like the National Conference that are coming out and comparing Yaqub Memon to martyrs. They're saying that हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने sacrifice किया, उनका मकसद जो भी हो, even if they're fighting for the wrong cause, they have fought and died for the cause that they're fighting for. इस देश में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। इस देश में जो लोग ब्रिटिश सरकार से माफी मांगते रहे, एक नहीं 4, 5, 7 बार, वो इस वक्त वीर बन गए हैं। उनको बड़ा कहा जा रहा है, अब तक कोई उनकी बात नहीं कर रहा था। All of a sudden they become the heroes of this ruling party. I don't want to mention all these things. So we're talking about the National Conference. Just listen me. Just I want to draw the attention of the clergies, Muslim clergies, that they should come forward and say that these things are not permissible in their community, in the society, in a civilized society, and that creates a void, and that creates a very different type of situation which is not conducive for the national interest and for the national harmony. Okay, all right. Mr. Atul Anjan, thank you for joining us. Beautification not required, but we have political parties like the National Conference not just justifying it, but even welcoming it. Listen in to the reaction that came in from the NC Neta. यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है। उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी है, चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है, ये मर्द ही दे सकता है जान। So this was a statement of the NC Neta. Arunil joining us live with more details. Arunil, jaan dena choti baat nahi hai. That's the statement coming in from the NC Neta, not mentioning the 257 lives that were lost in the 1993 blasts in Bombay. This is a convicted terrorist justifying the beautification. All right, before I come to you, I request you to stay on with us. We have Girish Mahajan on the phone line with us. Mr. Girish Mahajan, how do you respond to it at a time when there's outrage over the beautification? We have an NC Neta who is welcoming it. नहीं, ये बहुत शर्मनाक बात है और बहुत ही घिनौनी बात है कि याकूब मेमन जैसा जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली है बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके बाद उसे सब प्रूव हो गया, उसको फांसी दे दी गई थी और उसके बाद में उसकी कब्र जहां यहाँ मुंबई में उसको दफनाया गया था, तो उसका सुशोभीकरण हो रहा है, उसके ऊपर लाइटिंग लग रही है। मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक बात है सभी के लिए और इसका मुझे ये लगता है कि भाई हम तुष्टिकरण किसका कर रहे हैं, वोटों के लिए हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। याकूब जैसा जिसको तो खैर से दफनाना भी नहीं चाहिए था, मैं तो कहूँगा यहाँ पर तो, लेकिन उसको दफनाने के बाद उसके ऊपर अलग से सबको हटाकर उसके ऊपर पूरी रोशनाई की जा रही है, लाइटिंग की जा रही है, बड़े बड़े फोकस लगाए जा रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसकी जांच होनी चाहिए, डिटेल जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग जिम्मेदार जी गिरीश जी, इनफैक्ट यू नो इवन एज द पॉलिटिक्स ओवर इट इज प्लेइंग आउट, हमने बात की है वहाँ के लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये कुछ 5 से 7 महीने पहले हुआ था और कोई भी चेंजेस के लिए परमिशन चाहिए बीएमसी और जमा मस्जिद की। तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि किसने करवाया है ये फेसलिफ्ट, कब हुआ है ये क्या अभी कोरोना के समय में, उसके पहले तो जब इसको तब तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बताया जा रहा है वहाँ पे कमरे भी लगे हुए। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें इंक्वायरी के बाद में, जब डिटेल इंक्वायरी हम लोग करेंगे तो उसके बाद में ये सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि राजनीति को छोड़कर इस बात को देखना चाहिए, जो देश के दुश्मन है
जो किसी के हजारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के जान के दुश्मन है, और ये प्रूव होने के बाद अगर उनके कब्र पे अगर हम लोग इसका डेकोरेटिव करते हैं, उसको इतना बढ़ावा देते हैं, एक मज़ार में उसका हम ये करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सोचने वाली बात है। और सभी पार्टियों के लिए, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, तो ये तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, वोटों की राजनीति हमने नहीं करना चाहिए। जहां करना है वहां हम जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे जगह कि जिन्होंने कितनी लोगों की जानें ली बॉम्ब ब्लास्ट में, जो हमारे नए देश के दुश्मन है, तो उनको तो बिल्कुल इस तरह से बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात, सोचने वाली बात है ये। जी बिल्कुल। गिरीश जी, आपसे एक और सवाल पूछूंगी। उद्धव ठाकरे की सेना ने ये कहा है कि आपकी जो अभी सरकार है उन्हें जांच करना चाहिए कि कब हुआ, कैसे हुआ। बीजेपी ने लेकिन सवाल उठाया है उद्धव सरकार पर, ये कह के कि जब उनकी सरकार थी तब ये किया गया था, तब इसका परमिशन दिया गया था। हाँ, तो इसकी तो जांच डिटेली होनी चाहिए, परमिशन किसने दी थी, क्या दी थी। शिवसेना की तो सरकार यहाँ बीएमसी में है, उस वक्त अभी जब ये हुआ कोरोना का समय था, तब सरकार हमारे सीएम तो उद्धव जी यहाँ पर थे, ठाकरे थे। तो ये तो इसकी डिटेल जानकारी तो ली जाएगी, उसकी इंक्वायरी भी होगी, और उसके सामने तो मतलब ये सच सामने आ ही जाएगा, क्योंकि पुलिस डिटेल इंक्वायरी इसकी कर रही है। मुझे तो लगता है कि इसके लिए कोई अलग कमीशन भी रखा जाए इंक्वायरी के लिए हाई लेवल पर, तो वो भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र जी, वो भी इसके बारे में जरूर डिसीजन करेंगे। लेकिन इस बार मतलब सामने सच्चाई क्या है ये बिल्कुल लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी जनता, मतलब खाली महाराष्ट्र की बात नहीं कहूँगा, पूरे देश में इस बात से हंकम मचा हुआ है कि भाई ऐसे लोगों को मतलब इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इनके कब्र को डेकोरेटिव किया जा रहा है, जो हमारे देश के दुश्मन है, हमारे दुश्मन है। तो इसलिए सभी लोगों में इस बात को लेकर चिंता भी है। जी, आखिरी सवाल आपसे। एनसी के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि जो इन्होंने किया है उनकी वो इज्जत करते हैं, इन्होंने जान दी है, अगर उनका जो भी फाइट था वो अपने रीजंस की वजह से किया था, दैट्स हिज ओन रीजन, बट उन्होंने अपनी जान दी है और इसके लिए मैं उनकी इज्जत करता हूं, ये कहा है याकूब मेमन के बारे में। आप क्या कहेंगे? किसने कहा है? एनसी के नेता ने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा है कि नहीं, मुझे लगता है जब तो इनको फांसी दी गई तब कांग्रेस के नेता तो थे जिन्होंने मांग की थी कि इनकी फांसी रद्द की जाए, इनको सहानुभूति से देखा जाए। इन लोग, मैं कहता हूँ, वोटों की राजनीति के लिए हम कितना नीचे गिर चुके हैं, कितना स्तर नीचे गिर चुका है हमारा, ये बहुत सोचने वाली बात है। जो एक आदमी ने बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरे मतलब बम्बई को दहला दिया था, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को उन्होंने मार दिया था, और उसके बावजूद भी हम बेशरम जैसा कहेंगे कि भाई नहीं इसको छोड़ दिया जाए, इसको फांसी मत दो। ये कांग्रेस ने कहा था उस वक्त, कांग्रेस ने। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, गिरीश महाजन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Decorating, celebrating a man who killed 257 people and politics playing out over it with the NC Neta also welcoming. This remains a top focus here on Times Now.